Everyone, today we are going to start our new chapter, Geometry. So first we have four basic geometrical shapes that are triangle, square, rectangle and circle, and we call them plane figures. हमारी four plane figures हैं triangle, square, rectangle and circle. So one by one we will discuss each one of them. First comes triangle. Triangle में three sides होती हैं and there are three vertices. For example, this is a triangle ABC. इसके तीन vertex हैं. ये रहा vertex A, this is vertex B and this is vertex C. और three side हैं. This is AB side, this is AC and this is BC. ये तीनों sides equal हो भी सकती हैं जैसा फिगर में देख रहे हैं और equal नहीं भी हो सकती. Like अगर हम कोई ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिसकी एक साइड बड़ी हो और ये वाली, so in this triangle the three sides are not equal. So sides equal हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. Next figure comes square. Square, it has four sides, four vertices and two diagonals. Okay, four vertex, these are A, B, C and D. चार साइड हैं AB, BC, CD and AD और ये सब equal, एक दूसरे के equal हैं. All the sides of a square are equal. Okay, AC यहाँ पर जो है diagonal है. Diagonal is a line which we draw by joining the opposite corners. And BD जो है that is the other diagonal of the square ABCD. Now we will come to rectangle. Rectangle के पास भी four sides हैं, four vertices हैं. Okay, यहाँ पे हम देखते हैं vertices कौन से हैं. A, B, C and D. Opposite sides of a rectangle are equal, means AB will be equal to CD and AD will be equal to BC. अब इसमें diagonal देखते हैं. Here the diagonal is AC और दूसरा diagonal जो होगा that is diagonal BD. Okay, then comes circle. Circle जो है आपकी curved closed figure है और इस जो circle है उसके center है that is point O. अब हम drawing shapes, मतलब ये shapes हम कैसे कैसे draw कर सकते हैं. So first of all we have triangle. Triangle you can draw with the help of matchsticks. Matchsticks होती हैं घर पे, उसके help से हम triangle draw कर सकते हैं. जैसे ये वाला triangle देखो, इसकी तीनों sides equal नहीं है. ये वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल है और इसकी भी साइड्स इक्वल नहीं है. सो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. और कैसे ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन यूज अ वुडन और प्लास्टिक ट्रायंगुलर ब्लॉक. जैसे यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है और हम इसे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो भी ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा. स्क्वायर और रेक्टेंगल भी यू कैन ड्रॉ बाय यूजिंग मैचस्टिक्स, जैसे कि यहाँ पर आप ड्रॉ हो रखा है. और आप स्क्वायर को डाइस भी जो हम लूडो खेलने के लिए यूज करते हैं, उस डाइस को यूज करके भी हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं. रेक्टेंगल आप अपनी बुक, मैथ्स बुक ले लो या फिर यू कैन यूज अ मैच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स. उन सबको अगर हम उसकी बाउंड्री ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा रेक्टेंगल. हम स्केल भी यूज कर सकते हैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए. सर्कल कोई भी रुपए का कॉइन, लाइक 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, बैंगल, इन सब की हेल्प से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल. ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं कि जैसे कर्व्ड सरफेस क्या होता है. जैसे कि बॉल जो है उसका, बॉल का एक कर्व्ड सरफेस है क्योंकि वो पूरी की पूरी रूलर को टच नहीं कर रही है. So this is called the curved surface. Okay. Now we will discuss some solid figures. So हमारे पास solid figures होती हैं cuboid, cube, cylinder, cone and sphere. So हम one by one उनको discuss करेंगे. सबसे पहले आता है cuboid. जो cuboid है उसके एक plane को हम बोलते हैं face. It has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Let's count them. Face 6 कैसे हैं, एक तो नीचे वाला face, एक ऊपर वाला, एक राइट, देन लेफ्ट, एक फ्रंट जो सामने होगा और एक पीछे जो कि बैक फेस होगा.
So these are the 6 faces of a cuboid. Okay, now we will count the 12 edges. So जो हमारे 12 edges हैं, that is, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पे जो मार्क किए गए हैं रेड मार्क से, that are the 12 edges. Okay, now we will see the vertex. Vertex जो होते हैं, that is 8 vertex. Let's count them. Vertex मतलब corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the 8 vertexes, या फिर हम जिसको बोलते हैं corner of a cuboid. Okay, और each face of a cuboid is rectangle. ये तो हमने अभी अभी देखा, like this is a face. तो अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये क्या है, rectangle. और opposite faces are equal in a cuboid. Like यहाँ पे जो ये वाला, जो नीचे वाला face है और ऊपर वाला face है, दो, they both are equal. Now we will come to cube. क्यूब जो है बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह है, उसमें फेसेस जो हैं, पर उसमें जो फेसेस हैं दैट आर ऑफ सेम शेप एंड साइज. ओके, अब इसमें जो हर एक फेस है, ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर इन शेप, सो इट इज स्क्वायर इन शेप, एंड ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब आर आल्सो इक्वल. और इसमें वही 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, 8 वर्टेक्सेस होंगे. नाउ देन कम्स द सिलेंडर. सिलेंडर में 2 प्लेन फेस होते हैं और 1 कर्व फेस होता है, और इसके होते हैं 2 सर्कुलर एजेस. ये एक कर्व फेस है सिलेंडर का, एक ऊपर वाला प्लेन फेस, एक नीचे वाला प्लेन फेस. ये हो गए 2 प्लेन फेस. अब हम देखते हैं एजेस. एजेस जो हैं वो एक ये ऊपर वाला कर्व्ड एज, यहाँ पे प्लेन एज नहीं है, कर्व्ड एज, एक ऊपर वाला कर्व्ड एज और ऐसे ही एक नीचे वाला कर्व्ड एज. सो इट हैज 2 सर्कुलर एजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट कम द कोन. कोन का जो है, इसके पास भी 2 फेस हैं. एक जो है प्लेन फेस, जो नीचे का फेस है दैट इज द प्लेन फेस, और एक जो कर्व्ड फेस है कोन का. इसके पास एक सर्कुलर एज भी है, जो नीचे का हम देख सकते हैं. जैसे कि सिलेंडर के पास तो 2 सर्कुलर एजेस थे, पर कोन के पास 1 सर्कुलर एज है, and it has also a vertex that is a corner. So कोन का क्या है, एक प्लेन फेस है, एक कर्व्ड फेस है, एक सर्कुलर एज है और एक वर्टेक्स है. Then comes a sphere. Sphere अपनी क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वो सब क्या है, स्फीयर. उसका बस एक कर्व्ड फेस होता है, उसमें एजेस, कॉर्नर्स कुछ नहीं होते, बस एक फेस होता है, that is also curved. Okay, any doubts? Then we have straight and curved lines. स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम पेंसिल के थ्रू कोई भी, जैसे हमने मैच बॉक्स लिया, द लाइन विच यू ड्रॉ विद स्केल, ये सारी लाइंस जो हैं दैट आर कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. ओके, अब अगर हम बैंगल ले या फिर हम कोई रुपी का कॉइन ले, उसके थ्रू जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कर्व लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी, कर्व लाइन जिसमें थोड़ा कर्व होता है, जो हम बैंगल इन सब के थ्रू ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्व लाइन. अब एक हम छोटी सी एक्टिविटी करें तो हम हाथ में कोई स्ट्रिंग या कोई धागा पकड़ सकते हैं. अगर हम उसको टाइट पोजीशन में रखेंगे, दोनों साइड से खींच के रखेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन. इस फिगर में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख गई जब हमने दोनों तरफ से उसको टाइट पोजीशन में होल्ड करके रखा. अब हमने स्ट्रिंग को लूज कर दिया, तो ये इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कर्व लाइन. पेपर भी जो है, अगर हम उसको ज्वाइन कर दे 2 एंड से, तो जो बीच का जो बनेगा, क्रीज बनेगा, जो बीच की लाइन बनेगी, वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ वी विल कम टू ओपन एंड क्लोज फिगर्स. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज फिगर की. क्लोज फिगर वो होती है कि हमने जहां से पेंसिल से शुरू की, वापस हम उसी पॉइंट पर आ गए विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, इट इज कॉल्ड क्लोज फिगर. लाइक हमने यहाँ से शुरू किया और मैंने कोई फिगर ड्रॉ करी
और वापस मैंने जहां से शुरू किया था वहीं पे मैं वापस एंड हो गई तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। ओके, जहां से शुरू किया वहीं पे हम वापस आ गए तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे स्क्वायर है, दैट इज अ क्लोज्ड फिगर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और वापस हम उधर ही एंड हो गए, सो इट इज अ क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दी हैं, किसी भी और एक फिगर को कंसिडर कर लेते हैं, लाइक दिस फिगर को कंसिडर करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर एंडिंग हम वापस वहीं पे आ गए, सो इट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फिगर। नाउ वी विल कम टू ओपन फिगर। ओपन फिगर मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां पर वापस नहीं आ रहे, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया बट हम वापस उस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पर नहीं आ रहे, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन फिगर। ओके, एक और फिगर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया बट वापस हम उस पॉइंट पे रीच नहीं कर रहे, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन फिगर। होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। एक छोटी सी एक्सरसाइज टू टेस्ट योर नॉलेज जो हमने अभी तक लर्न किया। ओके, सो डज अ क्यूबॉइड हैव एनी कर्व्ड फेस? क्या क्यूबॉइड के पास कोई कर्व फेस होता है? नो, क्यूबॉइड के पास कोई कर्व फेस नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट कम्स, डज द क्यूब हैव एनी कर्व्ड एज? क्या क्यूब के कोई कर्व्ड एज है? So the answer is again no, क्यूब का कोई curved edge नहीं होता। Then next comes, does a cylinder have an straight edge? क्या सिलेंडर के पास straight edge है? नहीं। अगर हम एक बार सिलेंडर की फिगर एक बार ऊपर जाके फिर से देखते हैं, सिलेंडर के पास क्या थे? 2 सर्कुलर एज, एक ये नीचे वाला सर्कुलर एज, एक ऊपर वाला सर्कुलर एज। तो सिलेंडर के पास कोई स्ट्रेट एज नहीं है। Okay, so the answer will be again a no. How many corners are there in a sphere? Sphere में कितने corners होते हैं? Sphere has no corners. So the answer will be 0. बिल्कुल sphere में कोई corner नहीं होता। How many corners are there in a cylinder? Again the answer is 0. Cylinder में भी कोई corner नहीं होता। Does a sphere have any edge? हमने अभी भी डिस्कस किया था, sphere के पास कोई edge नहीं होता, बस एक curved face होता है। So answer is again no, the sphere doesn't have any edge. Does a cone have its base and top of same shape? बिल्कुल नहीं, जो उसका top था वो क्या था? Vertex, और base में curved edge present था। So the answer is no. How many curved surfaces does a cylinder have? सिलेंडर के पास कितने curved face थे? जो curved face के साथ कितने थे सिलेंडर के पास? एक। Very good. The answer is 1. Cylinder has 1 curved face or plane face. Cylinder has 2 plane faces. Write the name of 2 objects that have a shape of cylinder. तो ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. You can use a cricket ball. Okay, then और कोई example you can use a football. ये हो गए sphere के example. Write the name of 2 objects that have a shape of cone. Cone जो है like the आइसक्रीम कोन, जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, दैट इज अ कोन। सेकेंड एग्जाम्पल, जो बर्थडे कैप होती है, दैट जो कि हम बर्थडे जब होता है तब पहनते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ कोन। ओके, देन कम्स हाउ मेनी एजेस डज अ सिलेंडर हैव, आर दे इक्वल? एजेस कितने होते हैं सिलेंडर के पास? सो सिलेंडर हैज 2 कर्व्ड एजेस। ओके, सिलेंडर के पास 2 कर्व्ड एजेस होते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं? बिल्कुल, the curved edges of a cylinder are equal. So यहाँ पे आ जाएगा yes. Then next come the count the number of straight and curved lines. इसमें आपको straight और curved line draw count करनी है. So this one is a straight line. ये curved है. This is straight. This is curved. Straight, curved. This is curved, straight, curved, curved. तो straight कितनी हो गई? 1. This one 1, 2, 3, 4. 4 स्ट्रेट लाइन हो गई, और कर्व्ड कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कर्व्ड लाइन्स हो गई. ओके, सो 6 कर्व्ड लाइन and
4 straight line. Color each closed curve red, मतलब आपको सारे closed curve को red करना है. तो यहाँ पे आप red color fill कर देंगे. यहाँ ये भी एक closed curve है, ये भी closed figure है. red क्या ये closed है? नहीं, यहाँ पे meet नहीं हो रहा. क्या ये closed है? नहीं. This is a closed figure, यहाँ पे आप red color fill कर देंगे. And this arrow is also a closed figure, यहाँ पे भी आप red color fill कर देंगे. Okay, now we will come to our next topic, side, front and top view. जब हम different objects को, हमारे आसपास जो हमें objects हैं उनको हम कैसे देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. जैसे शार्पनर सबके पास होता है, उसको आप टॉप से देख रहे हो तो शार्पनर ऐसा दिखेगा. कोई कार है, उसको हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसी दिखेगी. क्यूब है, उसको आप देखो फ्रंट से देखो, आपको स्क्वायर दिखेगा. सिलेंडर को टॉप से देखो, लाइक आप पेंसिल ले सकते हो, वो आपको एक सर्कल दिखेगा. बुक शेल्फ देखो, उसको साइड से देखो, फ्रंट से देखो, टॉप से देखो. तो आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको साइड से देखो, फ्रंट से देखो और टॉप से देखो. तो आपको जैसा जैसा व्यू मिला और उसको आप नोट कर सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो. होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है. ओके, नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिरर हाफ्स एंड मिरर लाइंस. इजी सा टॉपिक है. जैसे हम ट्रेसिंग पेपर को अगर हम फोल्ड कर दें, जैसे डॉटेड लाइन से हमने फोल्ड कर दिया, तो इस डॉटेड लाइन को हम क्या बोल देंगे? मिरर लाइन. और जो दो सिमिलर पार्ट बने, एक ये वाला पार्ट जो कि एक ट्राइंगल का जो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट ट्राइंगल का. ओके, तो ये दोनों जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके मिरर हाफ्स. ओके, या फिर मिरर इमेज भी हम बोल सकते हैं. अब आप इसमें क्लास में एक्टिविटी भी कर सकते हैं. कोई पेपर, ट्रेसिंग पेपर लो, उसको एजेस के अलोंग कट करो और फिर उस पेपर को अनफोल्ड करके देखो, तो जो आपको दो पार्ट्स मिलेंगे इस लाइन के अलोंग, दैट विल बी कॉल्ड मिरर हाफ, और इस डॉटेड लाइन को हम बोलेंगे मिरर लाइन. ओके, अब आप इसमें देखो, गेस द लेटर्स बाय कुकिंग द हाफ. ये क्या होगा? जैसे हमने इसका मिरर हाफ बनाना है, तो दिस लेटर वुड बी डी. ओके, ये ऐसे डी बन जाएगा. ऐसे सबका आप मिरर हाफ बनाओ, ये क्या बन जाएगा? के. राइट, ये क्या बन जाएगा? यू. ओके, ये क्या बन जाएगा? वी. ओके, ये क्या बन जाएगा? आई. दिस वुड बी सी. ओके, दिस वुड बी ई. दिस वुड बी बी. ओके, this is O, O, and this would be X, मतलब आइस बॉक्स. ऐसे आप सबके नीचे वाला हाफ बनाओ, पेंसिल से ड्रॉ करिए. यहाँ पे इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, पर आप अपने नोटबुक्स में, अपने बुक्स में पेंसिल से उसका मिरर हाफ ड्रॉ कीजिए और देखिए कौन सा लेटर बनता है. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट कम्स टैनोग्राम. टैनग्राम, इट इज एन ओल्ड चाइनीज पजल. टैनग्राम क्या है? एक ओल्ड चाइनीज पजल है जिसमें जो उसके पीसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को यूज करने. जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं. और क्योंकि इसमें 5 पीस हैं तो हम इसको बोल देते हैं 5 पीस टैनग्राम. एक स्क्वायर है, जैसे एक बड़ा स्क्वायर है, हमने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक 5 पीस टैनग्राम बन गया क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन रही है. Okay, so this is a tangram which is an old Chinese puzzle. Okay, now एक बार हम क्विक रिविजन करेंगे ट्रायंगल से लेकर अब तक हमने जो भी फिगर्स डिस्कस किए. ओके, सबसे पहले ट्रायंगल, यू हैव टू रिवाइज विद मी, यू हैव टू रिपीट विद मी, साथ के साथ आप रिपीट करेंगे. ओके, ट्रायंगल, इट हैज 3 sides, 3 vertices. 3 sides आपको दिख रही है यहाँ पे, ए बी, बी सी, सी ए, और 3 vertex, ए बी और सी. साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी इक्वल हो सकती. ओके, देन नेक्स्ट कम्स द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या है? 4 sides, 4 vertices. 4 sides, A B, B C, C D and D A. 4 vertices, A B C D.
opposite side equal, AB will be equal to CD and BC will equal to AD. ये हो गया rectangle. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर. स्क्वायर की भी कितनी है, 4 साइड 4 वर्टेक्सेस, पर स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है. AB will be equal to BC will be equal to CD equal to AD. ओके, और 4 वर्टेक्स कौन कौन से हैं, A B C D. देन कम सर्कल. सर्कल के पास कोई भी साइड नहीं है, ना ही कोई वर्टेक्स है. इट हैज नो साइड्स, नो वर्टेक्स. ओके. प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. प्लेन सरफेस जो बिल्कुल सीधा है, कर्व्ड सरफेस जहाँ पे हमारी एक कर्व बन रहा है. यहाँ पे आप वुड का एग्जांपल लेके देख सकते हैं. ओके. क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन. अब हम इनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. क्यूब जो आपका जो डाइस क्यूब होता है, क्यूबॉइड जैसे आपकी मैच बुक, मैच बॉक्स, स्फीयर, वूल, बॉल, सिलेंडर, पेंसिल, कैंडल, कोन हमने अभी भी डिस्कस किया था, आइसक्रीम कोन, और जो बर्थडे कैप होती है. दीज आर योर डेली लाइफ एवरीडे एग्जांपल जो आप देखते हैं. आगे से कभी भी कोई शेप देखो, कभी भी कोई साइड में दो, उसकी आप शेप खुद आइडेंटिफाई कोशिश करो कि ये कौन सी शेप है. ओके. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. फेस, एज, कॉर्नर. क्यूब जो है 6 फेसेस हैं उसके पास. सिलेंडर के पास एक कर्व फेस है, 2 प्लेन फेस है, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है. ठीक है. यहाँ पे देखो कॉर्नर क्या था, जहाँ पे 3 एजेस मीट करते हैं. यहाँ पे देखो रेड से कॉर्नर मार्क कर रखा है. सिलेंडर क्या है, ये उसका कर्व्ड फेस है और ये उसका कर्व्ड एज है. सिलेंडर के पास 2 कर्व्ड एज है, उसके पास कोई स्ट्रेट एज नहीं है. सिलेंडर के पास 2 कर्व्ड एज है. ओके. अब एक एक करके हम फिगर्स को डिस्कस करेंगे. क्यूब, 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स. ओके. जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आपका रेड से जो मार्क करे हुए हैं, दैट आर द कॉर्नर्स. ओके. कम ऑन, रिपीट विद मी. 6 faces, 12 edges, 8 corners. Okay. Cuboid, 6 faces, 12 edges, 8 corners. Okay. फर्क क्या है, इसमें अपोजिट इक्वल होते हैं, क्यूब में सारे इक्वल होते हैं, सारे एजेस इक्वल होते हैं. ओके. स्फीयर, स्फीयर का कोई एज कॉर्नर नहीं है, सिर्फ एक कर्व्ड फेस है. स्फीयर हैज ओनली वन कर्व्ड फेस. सिलेंडर, सिलेंडर के पास 2 प्लेन फेस हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. एक कर्व्ड फेस है, 2 कर्व्ड एज हैं, एक ऊपर का कर्व्ड एज, एक नीचे का कर्व्ड एज. 2 प्लेन फेसेस, 1 कर्व्ड एज and 2 plain faces, 2 curved edge and 1 curved face. Then comes cone. Cone के पास एक vertex है जो यहाँ पे येलो से मार्क हो रखा है. Okay, it has 1 curved edge and 1 plain face, जो नीचे का ये plain face है, and 1 curved face. Okay. Then एक बार हम एक टेबल के थ्रू रिवाइज करते हैं. क्यूब, 6 faces, 12 edges, 8 corners. क्यूबॉइड का भी सेम होता है, 6 faces, 12 edges, 8 corners. स्फीयर, स्फीयर के पास बस एक कर्व्ड फेस है. सिलेंडर, 2 प्लेन फेस, एक कर्व्ड फेस, 2 कर्व्ड एज. कोन, एक प्लेन फेस, एक कर्व्ड फेस, एक कर्व्ड एज और एक कॉर्नर. ओके. होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है. इसके साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश. अब हम एक फाइनल आपका एक टेस्ट करते हैं टू टेस्ट योर नॉलेज कि अब तक आपने कितना सीखा है. ओके. आपने टेस्ट खुद करना है, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, टेस्ट करिए एंड देन फिर आंसर देखना. ओके. फर्स्ट इज ड्रॉ द मिरर लाइन. मिरर फेस आपको ड्रॉ करना है. ओके. यहाँ का चलो ड्रॉ करते हैं. इसका कैसा होगा, ऐसा 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 and then this is a straight line. Okay. Then second one like this, like this. When you will draw with a pencil, you will get the accurate figure. Okay. Like this, like this, like this. Mirror faces जो draw करना है, that is an easy task. कोई आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपने वही फिगर ड्रॉ करनी है जो आपको दिख रही है. ओके. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाएंगे हम.
जैसा हमें दूसरे पार्ट में दिख रहा है, और बीच में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है जो कि हम यहाँ पे ऐसा कैसा ड्रॉ कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द शेप एंड राइट अगेंस्ट द नंबर. पहले हमें शेप आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसका बताना है. ओके, तो फर्स्ट क्या है? स्क्वायर. साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट है स्क्वायर. सेकंड नंबर पे देखो क्या है, दैट इज ऑल्सो इन स्क्वायर. ओके, सेकंड जो है दैट इज ऑल्सो इन स्क्वायर. थर्ड कौन सी शेप है? ट्रायंगल. थर्ड इज इन ट्रायंगल. फोर्थ इज ऑल्सो ट्रायंगल. ओके, अब फोर्थ शेप को देखो, दैट इज ऑल्सो इन ट्रायंगल. फिफ्थ, इट इज एन rectangle. Okay, let's see once again. First ये आपकी square, second also square, third triangle, fourth triangle, fifth rectangle. Next comes, how many curved faces does a cone have? Cone के पास कितने curved faces? One, only one curved face does cone have. How many corners are there in a cube? Cube के पास कितने corner है? 8 corners. Is triangle a solid figure? No, triangle is not a solid figure. Triangle आपकी plain figure है. Solid figures कौन से थे? जो cube, cuboid, sphere, cone and cylinder. What geometrical figure does an apple represent? Apple जो है आप उसको almost sphere बोल सकते हो. Exact sphere नहीं, but apple it is almost a sphere. Then next come fill in the blanks. It is a close or open figure? Open figure, क्योंकि जहां से शुरू किया वहां पर हम वापस एंड नहीं हो रहे. देन सेकेंड, इट इज एन क्लोज्ड फिगर. यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वापस आके हम उसी पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फिगर. नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं. दिस फिगर हैज बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाली लाइन कैसी है? कर्व्ड. सो दिस फिगर हैज बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्व्ड. फिर इन द ब्लैंक में. नेक्स्ट इज सिलेंडर हैज डैश प्लेन फेसेस. सिलेंडर के पास कितने प्लेन फेस थे? 2. सिलेंडर हैज 2 प्लेन फेस. नेक्स्ट कम्स एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. जो करेक्ट आंसर है आपको उसको सर्कल करना है. द नंबर ऑफ कॉर्नर इन अ ट्रायंगल आर. ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? 3 corners. So you have to circle 3. Triangle has 3 corners. This figure is a. Is it a rectangle? नहीं, rectangle तो नहीं है. Is it a square? No, it's not a square. It is a closed figure. कैसी figure है? Closed. Because जहां से हमने start किया वहीं पे हम वापस end हो गए. So it is a type of closed figure. With this, your chapter is finished. हमने एक practice text भी कर लिया है. We have done sufficient practice. If you have any doubts, you can mention in the chat box. And if you like the video, please press the like button, share it, and subscribe to our channel. Thank you.